ضرور پلوامس مز فورسز تو ملٹنٹن درمیان جھڑپ مز 3 ملٹنٹ مار گولین ہندس تبادلس مز اخ فوجی جوان تہ فوت 24 گھنٹن دوران جنوبی کشیر مز 7 ملٹنٹ مار سامبا سیکٹرس مز آئی بی ایس ایف طرف اخ سرنگ لبن زیرو لائن پہ 120 گز دور ملٹنٹن ہز اخ کوشش ناکام آئی جی بی ایس ایف سری نگر جوم نیشنل ہائی وے آج ٹریفک باپت یل وتہ پہ درماند گاڑین برو پکنک اجازت تو ڈوڈہس مز سڑکہ ہند اخ حادثہ 6 نفر چھکہ در کینچن ہز حالت نازک آداب ناظرین کوشر خبر نامہ ہیت چھس بہ گوہر کچھے تہندس خدمتس مز حاضر پیش خبرن ہز تفصیل جنوبی کشیر ہندس ضلع پلوامس مز آز صبح فورسز تو ملٹنٹن درمیان جھڑپ مز 3 ملٹنٹ تو اخ فوجی جوان فوت سپودمت زڈورہ پلوامس مز تمہ سات فوجس تو ملٹنٹن درمیان گولین ہند تبادل سپودمت یل علاقس مز موجود ملٹنٹن ہز موجودگی اطلاع ملنے پتہ فورسز اہلکارو طرف علاقہ غیر کرنے آو یا دوران ملٹنٹن تو فورسز اہلکارن درمیان گولین ہند تبادل سپود گولین ہندس تبادلس مز سپود 3 مقامی ملٹنٹ مارے یل زن اخ فوجی جوان تہ فوت سپود امہ حوالہ وکٹر فورس طرف پریس کانفرنس ہند سنز کرنے آمت تم کیا ونن ولو وچھو attacking security forces, for example Adil Hafiz and his accomplice Azad Loan, who was neutralized on 12th August. They were involved in attacking a Naka party in which head constable of police was martyred on 22nd May at Pichu, Pulwama. Adil Hafiz was also responsible for a number of grenade attacks and a number of civilian atrocities. Of course, all these Shakur Pare and Adil Hafiz especially were involved in recruiting young people to terrorist ranks based on false promises and based on prodding by forces across the border. Thank you. DIG, you pointed out that police is into as far as getting the people back or the recruitment is concerned. Or preventing. Yeah, preventing people. So can you give us the figures that how many people or the boys have joined in this month? It's almost an 8th month we are in. And also, how many actually surrendered and what is the rehabilitation policy that are being implemented to get the boys back? See, there are various stages at which an intervention is made, and at times, most of the times, the initiative comes from the family members. At times it is a very sensitive subject to be made public. Because and can you give us the figures that how many actually were in South Kashmir? There's about 80 recruitments that have happened in South Kashmir. Any particular district that is having the highest number of recruitments? Most of the recruitments have been, we've seen a rise in Shopian of late, but that was the so-called revival of Al-Badr, and Shakur Pare was heavily involved in this recruitment. So you saw in the operation that happened in Kalura, where Shakur Pare was neutralized, you had 4 young boys who had joined the terrorist ranks, maybe within a span of less than 2 months from July onwards. So yes, Shopian saw this spike after June, and you have this slight spike in Kullam. We'll take rest of the questions after we finish off. Yeah. In Operation Kilro, which we received specific information from Jammu and Kashmir Police, and the troops of 44 RR were mobilized. The information was received in the afternoon, so there was a challenge of defeating the early warning system of the terrorists. A swift cordon was laid by 44 RR, and as the cordon was in place, the terrorists, they opened up at the cordon
the troops immediately resighted themselves and retaliated the fire. In the ensuing gun battle, 4 terrorists were neutralized, including Shakur Parekh, who was responsible for recent recruitments in Kulgam and Shopian district. While the search was on, there was some movement which was noticed in a bush, and there the Gordon party of 44 Ara, they noticed one terrorist hiding. While the party approached the terrorist, he shouted that he wanted to surrender and the party should not fire at him. The operational control thereafter was taken by the commanding officer, and immediately all parties were told to halt, and the terrorist was told to throw forward his weapon and his pouch which he was wearing, which he did. Thereafter he was asked to remove his outer clothing so that in case he's got a grenade with him, a primed grenade, or he's got an improvised explosive device, that could be negated. And thereafter the surrender of this terrorist was taken. With this, I would also take this opportunity of appealing that all new terrorists who have joined, they should surrender. We will provide all kind of assistance in his surrender, and also in leading and living a normal life thereafter. Thank you. We will ask the questions later. In the Zudur operation which was carried out today morning by 50 Rashtriya Rifles, where Adil Hafiz and 2 of his associates of Hizbul Mujahideen group have been neutralized, we primarily had 2 challenges. Firstly, this operation started in the hours of darkness, and that itself was a جنوبی کشیر ہندس ضرورہ پلوامس علاقس مز آز صبح یس فورسز تو ملٹنٹن درمیان جڑپ سپز تت من سپد 3 مقامی ملٹنٹ مار سپدمت ملٹنٹن ہند شناخت مسپونہ پلوام کس روف احمد ڈلی پورک عادل حفیظ تو دربگام پلوامک ارشد احمد سنگ رنگ سپز مزامی حوالہ آز پولیس فوج تو CRPF طرف اک پریس کانفرنس ہند سانز کورمت یت من یمو تفصیلات فراہم کرت شوپینس مز رات جڑپ دوران 4 ملٹنٹن ہز ہلاکت اخ ملٹنٹ یہ آو گرفتار کرنے تہ پاو چتس پتمین 24 گھنٹن دوران سپود جنوبی کشیر ہندس شوپین تو پلوامس مز 7 ملٹنٹ مار 2 الگ الگ جڑپن من 7 ملٹنٹ مار یل زن اخ ملٹنٹ آو زندہ گرفتار کرنے تو بی آز کس فورسز تو ملٹنٹن درمیان جڑپ من سپود اخ فوجی جوان تہ فوت. نیم محرم الحرام کے پیش نظر دراواز کرگلس مز اخ جلوس یت مز آزادارن ہند اکہ بڑ تعداد شرکت کر. ات موقع پہ آو انتظامیہ طرف جاری کرنے آمتن SOPزن پہ عمل کرت جلوس کڑنے یس واریاہو علاقوں مز نیرت امام باڑہس مز اختتام پذیر سپود. آپ کا میزبان مدثر احمد. ناظرین، آج ہم بات کریں 90 محرم الحرام کی، تو آج کارگل کے اندر اسلامیہ اسکول کرگل اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی جانب سے ماتمی جلوس برآمد کیے گئے. حالانکہ اس سے پچھلے سال کے ہم بات کریں تو ماتمی جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کرتے تھے، لیکن اس سال کورونا وائرس کووڈ-19 کے چلتے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ گائیڈ لائنز جاری کی گئی تھی کہ اس سال کم لوگ ماتمی جلوس میں شرکت کریں گے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال ماتمی جلوس میں کم لوگوں کی تعداد نظر آئی. اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے گائیڈ لائنز ایشو کی گئی تھی کہ سوشل ڈسٹنسنگ کا بالکل خیال رکھا جائے اور گائیڈ لائنز کا خیال رکھا جائے، جو کہ پوری طرح سے آج ماتمی جلوس میں نظر آیا.
یپور درو بابل علم پہ امام باڑ بڑگمس تام تک جلوس یت مز ہتواد آزادارو شرکت کرت امام اعلی مقامن ہندس شانس مز نوا خوانی تو مرثی کران سین قوبی کرت یدوے آزادار پنہ عقیدت اظہار کران تتہ گوشرو عالمو آز شہیدی کربلا سندین جانثارن ہز شہادت یپر کور بیمنا علاقس مز پلسن آزادارن ہند اخ جلوس منتشر کرنے باپت لاٹھی چارج تو اوشنن والی گیسک استعمال یمہ پت آزادار منتشر سپد Ya Hussein! Ya Hussein! لداخ سرحدس پہ یدوے حالات ونی تہ کشیدہ تو ملک چن ترونونی فوجی چھوکن ہائی الرٹ ون آمت یمہ پتہ ترشوے چھوکہ پنہ پنہ آئی تیاری کران یپر سری نگرس مز انڈین ایئر فورسن تہ کمر کسمت تو ون آئی اے ایف طرف یہ فوجی مشق کرنے یمہ باپت ضلع انتظامیہ زان دن آمت فضائیہ طرف گوگو لالگام اومپور بچور گوڑسوت یچگام خانپور ہمہوم تو شیخ پورس اندر روزن والن لکن مشقن دوران احتیاط ورتانچ اپیل کرنے آمت یہ کت باون لائق فضائیہ طرف یہ 100 پہ 120 کلو گرام وزنک بم ناکار بنانا سامبا بین الاقوامی سرحدس پہ آئی آز اخ سرنگ لبن بی ایس ایف ون سامبا سیکٹرس نزدیک گالر علاقس مز آو سرچ آپریشن شروع کرنے یتھ دوران اخ سرنگ آئی لبن یا زیرو لائن پہ 150 گز زیت آئی جی بی ایس ایف ون پریس کانفرنس دوران اکہ خصوصی ٹیم ذریعہ آو امہ سرنگہ ہند پتہ کڑنے یس اخ بڑ کامیابی सीमा सुरक्षा बल को बहुत दिनों से कुछ जानकारी मिल रही थी कि सांबा एरिया में पाकिस्तान की तरफ से कोई टनल जो है वो खुदी हुई है। इसको लेके हमने कुछ एक स्पेशल टीम्स जो है वो ग्राउंड के ऊपर काम कर रही थी और उनमें से एक टीम ने कल शाम को बॉर्डर के 150 गज के अंदर एक टनल को ढूंढ निकाला है। उस एरिया की फर्दर सर्च करने पर पाया है कि ये टनल करीब 150 गज है, पाकिस्तान की तरफ से आ रही है और इंडिया में पहुंचने पर इसकी करीब गहराई जो है वो 20 से 25 फुट ग्राउंड के नीचे है। इसका जो मुंह है वो कम से कम 2 फुट बाई 2 फुट डाया का खुल रहा है और उसके मुंह के ऊपर प्रॉपरली सैंड बैग्स के साथ में इसको रीइंफोर्स किया हुआ है। उन सैंड बैग्स के ऊपर जो मार्किंग है वो पाकिस्तान की है, जिसके ऊपर कराची लिखा हुआ है, शकरगढ़ लिखा हुआ है। ये सैंड बैग्स आपको थोड़ी देर में दिखाए जाएंगे, जिससे क्लियरली ये इंडिकेट होता है कि ये टनल जो है ये पाकिस्तान से शुरू हुई है, यहाँ तक आके ख़त्म हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ आवाज पार्टी हेडक्वार्टर वाक़ा नवाज सुबह मज पोलिटिकल अफेयर्स इजलास मुनक़द करने यथ मज पार्टी हिंद सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला तो पार्टी हिंद दोयम सीनियर लीडर तक मौजूद येल जन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए दोयमन कैंसन लीडरन सत्य आय कत बात करने। अत मौकस पे आव जम्मू कशीर मज मौजूद सियासी सूरत हालुक जायज़ हेन येल जन इजलास दौरान आव जम्मू कशीर हिंद खसूसी दर्ज बहाल करने बापत जुदोजहद जारी थवनुक अज़म ते ज़ाहिर करने।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस वर्किंग ग्रुप के इजलास में क्या कुछ चर्चा हुआ, जराये के हवाले से खबर है कि 35 से 370 पर सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा है, इसको किस तरह से कानूनी तौर पर लड़ा जा सके। राम माधव के जम्मू कश्मीर में जाते जाते मियां अल्ताफ के लिए मुलाकात का वक्त मांगना और उसके बाद जम्मू कश्मीर में उनके बयान के 370 एक तारीख है, इसको अब वापस अवराक को पलटा नहीं जा सकता है, इस पर भी चर्चा किया गया। और जम्मू कश्मीर में मजमूई सूरत हाल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक साल में क्या खोया क्या पाया, इस पे चर्चा जो है जारी रही। लीडरान ने मुत्तहिद होकर इस बात को साफ किया कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक रोल अदा करना होगा, जिसको खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, चाहे वो सियासी तौर पर चाहे वो कानूनी तौर पर। जो भी लड़ाई मरकज के साथ लड़ी जा सकती है उसको विद इन कॉन्स्टिट्यूशन लड़ा जा सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत का ये इजलास आज पूरा दिन जारी रहा। डॉक्टर उमर अब्दुल्ला के साथ साथ सीनियर क़यादत मौजूद थी और इत्तलात के मुताबिक ये इजलास कल भी जारी रह सकता है। बथरी डोडहस मज आव सड़क हुंद हादसा पेश यथ मज ड्राइवर सान 6 नफर छकदर सपदमत। वन गंड पे ठाठरी कुन गन वाजिन सोमू आय बथरी निश अकिस सनिस नालस मज लाने या दौरान सोमू गाड़ मज 6 नफर शदीद छकदर सपद। मुकामी लुकन हंद तरफ युद्ध बचाव कार्रवाई शुरू कर छकदर हस्पताल आय निन, ताहम वन छकदरन मज कैंसन हज हालत नाजुक। जख्मी सपदमतन मुसाफिरन हंद शनाख्त मुजफ्फर हुसैन, तालिब हुसैन, शकील अहमद, हाजरा बेगम, जरीना बेगम तो खाशमा बेगम सुंदरी सपद। इस वक्त हम मौजूद हैं बाथरी में जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पे आज सुबह 11:30 बजे के करीब एक टाटा सुमो जो गंदो से ठाठरी की तरफ आ रही थी वो स्किड होके नाले में गिरी है और उसमें 6 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन जो 6 लोग हैं उनमें से 2 लोगों को ठाठरी ट्रॉमा सेंटर में रखा गया है और 4 लोगों को डोडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। अभी हादसे की जो वजह है वो पता नहीं चल पाई है, लेकिन ये मेडिकल असिस्टेंट डिग्री हासिल करने वालों नौजवानों तरफ आज पुलवामिस मज एहतजाजी मुजाहिर करने आमुत। या दौरान एहतजाजस मज शामिल नौजवानों इंतजामी के फैसलस खिलाफ नारेबाजी कर। अत मौके पे वोन एहतजाजी नौजवानों से युद्ध तमो कहियान वरियन हुंद कोर्स मुकम्मल कोर, ताहम हाल इंतजामिया तरफ हुक्मनाम जारी करने आमुत यम सम नौजवानों मज तशवीश पैदा सपदमुत। एहतजाजस मज शामिल नौजवानों तरफ मांग करने आमज हुक्मनामस पे गि दोबारा गौर करने युन, युद्ध जन यमन नौजवानों मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर यी करने। जब स्टेटहुड को यूटी में कन्वर्ट किया गया तो जो हमारा एक्ट था 1948 फार्मेसी एक्ट, तो उसमें जो हमारा एक्ट होता था सर उसमें इम्प्लीमेंटेशन आई आफ्टर द एबॉलिशमेंट ऑफ द आर्टिकल ऑन 5 अगस्त। सर उसके बाद क्या हुआ, जो हमें रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दी जाती थी सर, जब स्टेटहुड को यूटी में कन्वर्ट किया गया तो जो हायर अथॉरिटीज़ है वो हमें बोल रहे हैं कि आप लोग एलिजिबल नहीं हो सर। हम लोग इसीलिए पिछले साल से प्रोटेस्ट करते हैं, हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है सर। हम पीसीआई से कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि आप लोग स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास जाओ, हमें कोई भी सजेस्ट नहीं हो रहा है सर। हम क्या गुजर बस्ती गुलशनपुर त्राल के लोकों तरफ शिकायत बावान वन आमुद युद्धवे इलाकस मज MG नरेगा तरफ अकिस स्टेडियमस पे कह वरी ब्रो काम आई शुरू करने, ताहम आई नामालूम वजूहातों किन काम पे ठाक लागन। लुकन हुंद वन स्टेडियमस पे अगर जन 15 लाख रुपये वागुजार आई करने, ताहम आई वागुजार करने आमुत हुकूमत अत पे खर्चन। यपर वोन ADC त्रालन स्टेडियमस पे मजीद काम शुरू करने बापत आव मुतलका महकम के अफसरन हिदायत दिन। मसला ये है कि यहाँ BDR रिपल ने हमें नरेगा के तहत एक स्टेडियम दी है, जिस स्टेडियम का हमने सुना है कि 15 लाख रुपया आए हैं, लेकिन 15 लाख में अभी 2 लाख का काम नहीं हुआ है। हम हर जगह देखते हैं स्टेडियम 4 या 5 लाख की जो स्टेडियम होती है बहुत बढ़िया स्टेडियम बन जाती है, लेकिन जो 15 लाख स्टेडियम है इसको काम नहीं करते हैं। मार्च से आज तक इन्होंने देखा क्या किया है, लेकिन हमारे ST कैटेगरी के जो लोग हैं ये गरीब होते हैं, इनकी तरह किसी का तवज्जो और किसी की नज़र नहीं पड़ती है। इसलिए हम आपकी चैनल से रिक्वेस्ट करना चाहते
है कि जो हमारा स्टेडियम है, वीडियो आरिपल से रिक्वेस्टिंग करेंगे कि जल्दी तो जल्दी ये बनानी चाहिए। और 15 लाख की जो स्टेडियम होगी वो कैसी होगी, उसमें देखने के लिए बड़े बड़े लोग आएंगे। लेकिन 6 या 7 लाख की स्टेडियम जो होती है वो बन जाती है बढ़िया, लेकिन 15 लाख की स्टेडियम कैसी होनी चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्टिंग है और जल्दी तो जल्दी हमारा काम होना चाहिए। पहले इस स्टेडियम पे मैंने खुद भी मुआयना किया है। स्टेडियम बना है एंड मगर वहाँ पे और डेवलपमेंट की स्कोप है एंड जितना हमें रिक्वायर्ड साइज चाहिए उतना रिकॉर्ड नहीं बना है, बट उसके पैरेलल एक रोड जा रहा है तो उस लिहाज से हम नहीं जा पाएंगे बिकॉज वो रोड किसी दूसरे हैबिटेशन को कनेक्ट कर रहा है। बट लेफ्ट साइड पे है एंड दूसरी साइड जो बाकी ईस्ट वेस्ट है वहाँ पे हम उसमें एक्सपेंशन दे सकते हैं। तो मैं इसके साथ साथ मुझे लगता है शायद लास्ट फ्राइडे को मैं गया था खुद ही फिर, तो वहाँ मैंने वहाँ के जो एक एसोसिएशन थे लोग निकले थे, उनके कई डिमांड्स थे, एक डिमांड ये भी थी, तो मैंने इंस्टेंटली वीडियो साहब को जो कंसर्न जो आईथर का बोला है उसको मैंने सिस्टम में दे रखी है। राजौरी मेडिकल कॉलेजस मज शवरी ब्रो लिफ्टस मज खराबी इन पत सो बंद थावन आमुत तत आव लिफ्ट ठीक करने पत मरीजन तो तीमारदारन खतर यल त्रावन। अत मौकस पे ये अस्पतालस मज इन वालन मरीजन तो तीमारदारन अस्पताल इंतजामिया को शुक्रिया अदा करने तो अस्पताल इंतजामिया तरफाव इन वालन मरीजन तो तीमारदारन अपील करने से तिम गछन लिफ्टुक सही इस्तेमाल करें। ये चीज़ें बार बार नहीं बनती हैं, जैसे कि थोड़ा माइनर सा डिफेक्ट आया और 6 साल बंद रही। अब हमने जाके प्रिंसिपल सर ने इनिशिएटिव लिया, इसको चलाया क्योंकि काफ़ी लोगों को इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है और जो हमारा एडम ब्लॉक है वो 3rd और 4th फ्लोर पे है और काफ़ी ऐसे पेशेंट्स होते हैं या कुछ लोग बुजुर्ग लोग होते हैं जिन्होंने कोई साइन कराना हो या कुछ है, उनको रैंप से या स्टेयर से चल के जाना पड़ता था और उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती थी। अब मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसका मिसयूज़ मत करें और इसको जो है एक प्रॉपर तरीके से चलाएं और हमने जो अपने रूल्स हैं वो भी इस पे लगाए हुए हैं कि जो भी इसको मिस यूज़ करेगा उसको हमने 1000 रुपीज़ जो इसका फाइन रखा हुआ है। और सब लोगों से लिफ्ट क्या जो हॉस्पिटल के हर एक प्रॉपर्टी है उसको जो है अपना समझे और मिस यूज़ मत करें। हादर मोहल्ला खोजबाग वरमुल के लोकों तरफ शिकायत बाबान वोनमुत युदवई मकामी सड़कें हज शेर पर हवाल कदम तुलन आय तो सड़क पे तारकोल वहरावन आव ताहम सही तरीकस मज मुकम्मल करने आमद, यमि किन मकामी लुकन मज कान हवाल तशवीश पैदा सपदमत। मकामी लोकों तरफ इंतजामिया मांग करने आमद मुतलक ठेकेदार तो अमलस गछ जवाबदेह बनाने yin युद्ध जन रुकुमात जायन करने। हमें सुनने में आया कि गवर्नर साहब आज हमारे मसले सुन रहे हैं, मगर बदनसीबी हम डायरेक्ट गवर्नर साहब से हमारी गुजारिश है कि हमें ये मौला हैदर ये तवारीखी इलाका है, मगर ये ओल्ड खोजबाग है। बदनसीबी से यहाँ शिरवानी कॉलोनी को 4 ईंट डाला गया, यहाँ बुलेट डिपार्टमेंट यहाँ जेटी को डाला गया, मगर हमें आधा मुतमईन नहीं, हम मुतमईन किसी भी तौर इस एडमिनिस्ट्रेशन से कोई हमारा ताल्लुक है, कोई हम मुतमईन नहीं है। मुश्किल आय ओत्र या रात किस 8 बजे अक्या वह वन जन तम दपान यह वोन यमो ये कर मेकअप कम मूजूब महरिन कड़न यप यह महरिन कर मेकअप यह कह तरीक यह तरीक त्रो क्या ये रोडस मुतमईन ना कहें मुतमईन। बारपथर हफचनार श्रीनगर के लोकों तरफ शिकायत बामान वन आमुद इलाकस मज सड़कें हज खस्त हाली किन मकामी लुकन फेरनस थोरनस मज मुश्किलात व्यतरन पेवन तो युदवई सड़कें हज शेर पर बापत हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिरन आव ताहम आज ताम कह कदम तुलन आमुद यम किन मकामी लुक एहतजाज करनस पे मजबूर सपदमत। माला बारापत्थर हफचनार है, यहाँ हेल्प और गेट जो है देख रहे हैं आप, हेल्प वॉलंटरी हेल्प और है, इनके साथ ये मोहल्ला था। ये बिहाइंड जो इकबाल शॉपिंग कम्प्लेक्स है उसके बिहाइंड में ये छोटा सा मोहल्ला है। पिछले 2014 में जब सैलाब आया था हमारे मोहल्ले की सारी सड़कें जो है बर्बाद हो चुकी हैं और ये नाला एक उतरता है ये मलेशिया से लेकर मगरमल कलवट तक सब इलाका इन्होंने उसमें ड्रेन जो बनाई हुई है, मगर ये इलाका इन्होंने छोड़ दिया। इसकी हम इनसे पुरजोर गुजारिश करते हैं कि इसमें आप पाइपें छोड़ें। मैं कमिश्नर साहब से डीसी साहब से इल्तिमास करता हूं, गुजारिश करता हूं, जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि हमारी बात जो है कि इसको एकदम जो है इसकी तरफ फौरी तवज्जो दी जाए और इस मोहल्ले की जो सड़कें वगैरह हैं, लिंक रोड जो है वो ठीक किया जाए।
साहू देवसर कोलगमिस मज आयि कांग्रेस लीडर डॉक्टर अयूब सिंध तरफ मकामी लुकन मज मास्क तो सैनिटाइजर बगरन। अत मौकस पे आव वन कोरोना वायरस के पेश नजर आव यह कदम तुलन तो आम लुकन अपील यवन करन तिम गसन वायरस निश महफूज रोजन बापत मास्कन हुंद इस्तेमाल करनस अलाव समाजी दूरी हुंद खास ख्याल थावन। वास्ते मैं इधर आया हूँ लोगों को उजागर करने के लिए कि आजकल जो कोविड-19 की महामारी चल रही है तो उसकी अवेयरनेस के लिए मैं आया हूँ ताकि लोगों खबरनामा अंद दियो इजाजत खुदा हवाल।